بھی میں حسینہ شیخ حسینہ کے بارے میں کچھ نہیں بولا، لیکن ایک چینل ہے انڈین مکس وائز کر کے، وہ اتنا حرامی ہے چینل والا، اتنا حرامی، یہ جملہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ وہ صرف جھوٹ کی بنیاد ہی پر پلتا ہے، پوستا ہے، بڑھتا ہے، اور حرام لقمے کھانے پر وہ آماتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر۔ اب اور کچھ چینل والے اٹھے ہیں، ابھی ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن نظروں میں میرے سب ہیں، اور آئیں گے تو سب ایک دن گرفت میں آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے اپنا ریکارڈ رکھتا ہوں تاکہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکے، تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ادھر توجہ دو، کیمرے امروں میں آنے کی کوشش مت کریے، آپ آ جائیں گے۔ تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی ہے سناتن دھرم، یہی ہے اسلام۔ شری کرشن جی نے کہا تھا ارجن سے شریمد بھاگوت گیتا کے ادھیائے 4 کے اندر، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت، ہے ارجن، جب جب دھرم میں بگاڑ ہوتا ہے، جب جب دھرم میں گلانی ہوتی ہے، جب جب ادھرم بڑھتا ہے، جب جب جہالت اور بربریت دنیا میں پنپتی ہے، تب تب میں اوتار لیتا ہوں، تب تب نبی آتا ہے، تب تب اوتار آتا ہے، تب تب نبی آتا ہے۔ یعنی جب بھی بگاڑ پیدا ہوگا تب نبی آئے گا، تب رسول آئے گا، تب اوتار آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس رسول کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سارے نبیوں نے یہی پیغام دیا اور یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی اوریجنلٹی ہے، اور جو دھرم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے وہی سناتن دھرم ہے، وہی شانتی کا اپدیش دیتا ہے۔ اسلام ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ کہیں کہتا لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ کہیں کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو اے جنوں اور انسانوں صرف اس لیے اس دھرتی پر پیدا کیا تاکہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہم اور آپ پیدا ہوئے، یہی توحید ہے۔ اور جس دھرم کے اندر توحید نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا دھرم ہے، وہی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دھرم نہیں ہے۔ عیسائیت بھی یہی کہتی ہے there is no God، کوئی خدا نہیں ہے، but God is only one، ایک ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یہی گوتم بدھ بھی کہتے ہیں، یہی مہاویر جی بھی کہتے ہیں، یہی کرشن جی بھی کہتے ہیں، اور ویدوں میں یہی لکھا ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، اس برہان کا رچیتا اور رچنا کار، اس ورلڈ کا ماسٹر صرف ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ دتیہ ناستے دوسرا نہیں، نے بالکل نہیں، نانا قطعی نہیں، کنچن ذرا سا بھی نہیں۔ اس دنیا کا، اس برہان کا رچیتا اور رچنا کار صرف ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں۔ یچتیو یوپممہ نستسما دیوی شوری رشا، اوریجنلٹی بتلا رہا ہوں، دیکھیے کیا ہے۔
यचित्तियो यो पिम्मिम्मा। कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन उससे मांगो वही तुम्हें देता है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, हाय अर्जुन उससे मांगो वही तुम्हें देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। नेह पुत्रम, पुत्र भी मांगना है, बेटा बेटी भी मांगना है, तो उसी से मांगो, वही पुत्र पुत्री देने वाला, वही बेटा बेटी देने वाला है। उसके अलावा नस्तस्मा देवीश्वरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कुरान भी यही कह रहा ना, यहबु लिमन यशाउ इनातन व यहबु लिमन यशाउ दुकूर। वही अल्लाह है जो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और वही अल्लाह है जो चाहे तो तुम्हें बेटे ही बेटे दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व उनाता, और वही तो है जो चाहे तो तुम्हें बेटे भी दे और बेटियां भी दे। वही अल्लाह जो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और चाहे तो बेटे ही बेटे दे, और चाहे तो बेटा बेटी दोनों दे, और चाहे तो तुम्हें कुछ भी ना दे, न बेटा न बेटी। अल्लाह ही है जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसको चाहता बेटे ही बेटे देता है, जिसको चाहता बेटा बेटी दोनों देता है, और जिसको चाहता है कुछ नहीं देता। शुआइब अलैहिस्सलाम एक नबी है, एक पैगंबर है, अल्लाह ने उनको बेटियां ही बेटियां दी। क्या बेटा नहीं चाहते थे? वो चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। आइंदा साल जब जलसा कराइएगा ना, तो जलसे गाही में वहीं टॉयलेट भी बनाइएगा, ताकि किसी को उठ के जाना ना पड़े, वहीं बैठ के पेशाब भी कर ले। बीच में बैठ जाएंगे, फिर उठ के भागेंगे। जो चीज आप लोगों को पेश आती है मुझे भी तो आ सकती है। अब जलसा छोड़ के जाऊं तो कैसा लगेगा बताइए? अगर हम लोग रोक सकते हैं तो आप लोग थोड़ा नहीं रोक सकते हैं। कैमरामैन कहाँ है भाई? लेडीज में पर्दे में नहीं है? हाँ, लेडीज का पर्दा नहीं चल रहा है, उधर जरूर आना चाहिए, वरना ऐसी चप्पलें और साड़ियां बिकेंगी, ऐसी मछलियां बिकेंगी कि जलसा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उनकी आवाज यहां तक नहीं आ रही है। हाँ, वरना आज तो उनकी ईद का दिन है। कितनों ने साड़ी दिखा दी होगी, फला दुकान से लाए, किसी ने चप्पल दिखा दी होगी, फला दुकान से लाए। तो मेरे भाइयों सुनिए, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, और याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए। नबी का हाल देखो। लोग कहते हैं कि हम जिनके पास बेटा बेटी मांगने जाते हैं, ये हमें बेटा भी दे सकते हैं, बेटी भी दे सकते हैं। अरे नबी अपने घर में मालिक नहीं है। शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी। क्या वो बेटा नहीं चाहते थे? चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। ये अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो दे, चाहे तो न दे। शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, और याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटे भी दी और बेटियां भी दी। बेटे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, और बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। देखिए, ये अल्लाह की कुदरत है। और ईसा अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह ने न बेटा दिया न बेटी दी।
शादी नहीं हुई, जिंदा उठा लिए गए आसमान पर। यही चीज तो वेदों में बताई गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है और वो है इस्लाम। अगर हमारे हिंदू भाइयों को यह लगता हो कि मौलाना जर्जीस तो एक मौलवी है इसलिए इस्लाम इस्लाम कह रहा है, तो चलो, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। अब कैसा लग रहा है? एक जर्जीस के अंदर इतनी फराख दिली है कि वो कह सकता है कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म सनातन धर्म है। क्या किसी हिंदू पंडित में इतनी ताकत है जो कह सके कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म इस्लाम है? किसी पंडित में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है? हजारों की भीड़ में जर्जीस के अंदर इतनी जुर्रत है, इतने मौलवियों की मौजूदगी में मैं कह सकता हूं कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म, वो है शाश्वत धर्म। क्या किसी हिंदू पंडित में, क्या किसी सिख में, क्या किसी ईसाई में, क्या किसी शंकराचार्य में इतनी हिम्मत है जो कह सके कि अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है, वो है इस्लाम? देखो, हमने शो करने के लिए नहीं कहा, हमने चुपके से कहा निकल जाइए। वैसे आप लोग बेकार चंदा कर रहे हैं, जितना आपको मिलेगा नहीं उससे ज्यादा तो इंशाअल्लाह तक़ी के बाद हम करवा देंगे आपका। हमने सोचा था कि आपकी भीड़ देखकर 10 मिनट के लिए मैं बैठूंगा और आपसे लूंगा, लेकिन अब आप लालच बहुत बुरी चीज होती है। अब क्या करें, अब क्या करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा, या हरामो बुनो आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान। आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसकी 2 चीजें जवान होती जाती हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी 2 चीजें, 2 ख्वाहिशें जवान होती जाती हैं। अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उम्र। माल में लालच बढ़ता जाता है और उम्र में लालच बढ़ता जाता है। 80 साल का बुढ़ा, उससे खैरियत लो, हजरत कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, क्या दुआ करिए अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। खांसते खांसते बुरा हाल है, कंडीशन बहुत खराब है, एक बेटी रह गई है शादी के लिए, बस इतनी उम्र और मिल जाए कि मैं अपनी आंखों के सामने इसकी विदा कर दूं, इसके हाथ पीले कर दूं। 80 साल हो चुके हैं फिर भी चाहता कि 5 साल और जी लूं। 85 साल है फिर भी चाहता कि 5 साल और जी लूं। 90 साल का है चाहता कि 10 साल और जी लूं। लालच खत्म नहीं होता और जितना बुढ़ा होता जाएगा पैसे की लालच भी उतनी बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ एक लड़का था, वो कह रहा था बगैर जहेज के मैं शादी करूंगा, मैं लड़की से कुछ नहीं लूंगा। वो तैयार था, उसका बाप 85 साल का कहता चुप, आखिरी लड़का रह गया, लूंगा क्यों नहीं, सब कुछ लूंगा। बेटा मना कर रहा है, कह रहा है नहीं, लड़की का माल पर जिए तो क्या जिए यार, हम अपने हाथों से कमाएंगे, मेहनत करेंगे, बीवी को खिलाएंगे। बाप कहता चुप, मिल्ला तो रख ले। तो मेरे भाइयों, ये फितरी चीज है। इब्ने आदम का, इंसान का पेट कौन सी चीज भर सकती है? वला यमलऊ जौफब्न आदम इल्ला तुराब। इब्ने आदम का पेट, इंसान का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है कब्र की। मरने के बाद जब तक वो कब्र में ना चला जाए उसका पेट नहीं भर सकता। लौ कान अली इब्ने आदम वादियान मिन माल, मालो दौलत और सोने और चांदी से भरे हुए 2 जंगल भी, 2 गोदाम भी हो, 2 वादियां भी हो, तब भी वो कहेगा कि काश मेरे पास तीसरा घर और होता, काश मेरे पास तीसरा गोदाम और होता, काश मेरे पास तीसरा स्टोर और होता, मेरे पास इतना माल और होता। इंसान का पेट भर ही नहीं सकता मालो दौलत सोना चांदी। वला यमलऊ जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब, मिट्टी ही भर सकती है। लेकिन लालच अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि मदरसे के लिए चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए मैंने जो बोल दिया। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चंदा हो जाए
तो ये मदरसे ही के लिए चाह रहा, अपने लिए नहीं चाह रहा। तो ये लालच होना भी चाहिए अगर मदरसे के लिए है तो, और मस्जिदों के ताउन के लिए है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, होना चाहिए। बुराई ये कि अपने लिए लालच, लेकिन मदरसे के लिए होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट मांगे ग़ज़वे तबूक के मौके पर, है कोई जो 100 ऊंट दे? हजरत उस्मान उठे, कहा मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। देखिए अभी और लालच आ गया। अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? फिर उस्मान गनी उठे, का अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान 200 दे चुके, कोई और है जो 100 ऊंट दे? नबी में भी लालच आ रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान 200 दे चुके, कोई और है? फिर उस्मान उठे कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं कहा जा रहा है उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे। फिर उस्मान चौथी बार उठते कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 400 दे चुके हो, अब तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों के लिए। 5वीं बार भी उस्मान उठे, 6ठी बार भी उस्मान उठे, और 7वीं बार जब पुकारा तब भी उस्मान गनी उठे। अल्लाह के नबी बैठ गए कि नहीं, अब मैं जितनी बार कहूंगा उस्मान ही उठेंगे, एक आदमी पर इतना बोझ डालना अच्छा नहीं है। उस्मान 700 ऊंट दे चुके, उसके बाद आप उठे, और उठने के बाद आपने फरमाया लोगों अभी जिब्राइल मेरे पास आए और फरमाया आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया, इतना बड़ा नेक काम किया, इतना बड़ा नेक काम किया कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे नबी से मोहम्मद से कह दो कि मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम कत्तु। उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उस्मान को कोई खतरा नहीं है। आज के बाद अगर उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी। अगर मैं कह दूं कि इस मदरसे को 5 लाख रुपए साल की जरूरत है, आज के इस दौर में इतना बड़ा कलेजा कौन है जो कह दे कि जर्जी साहब आपने 5 मांगा, मैं अकेले देने के लिए तैयार हूं, लीजिए। अब सोच रहे होंगे आप कहीं 10 मिनट बाद मौलाना जो बोलेंगे बाद में, कहीं 1 से 5 लाख ही ना मांग बैठे। हर आदमी, हमारी सोच बदल गई, हमारे जहन बदल गए। वरना उस्मान गनी 100 फिर 100 फिर 100, और आप कह भी रहे उस्मान, अब तुमसे नहीं कह रहे, तुम्हारे अलावा कोई और है जो 100, फिर उस्मान गनी उठते 700 ऊंट। या अल्लाह, एक ऊंट की कीमत देखो और 700। और उसके बाद क्या कहते हैं उस्मान, आय अल्लाह के नबी जब तक आप पुकारते रहते और मांगते रहते मैं ही उड़ता रहता और बोलता रहता, जब तक कि आप खुद खामोश नहीं हो जाते। अंदाजा तो लगा कहां है ऐसी जुर्रत ईमानी हमारे अंदर। तो वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे दोनों दे और जिसको चाहे कुछ न दे। ये है इस्लाम, और यही है सनातन धर्म, और यही है शाश्वत धर्म। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, ये 5 चीजें क्या है? अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम ये कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक तो हो गया, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अभी तक तो उसी पे बोल रहा था ना मैं, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब इसके बाद जो जुमला आया वो क्या है? वो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात को हम नहीं कह रहे कि मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो। ये इस्लाम, यही सनातन धर्म है। बुद्धा, ईसा मसीह ने क्या कहा है? बाइबल पढ़िए, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? जीसस सेज इन द बाइबल, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम विल बी अहमद।
ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुमको एक दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, एक दूसरा रहबर दे, एक दूसरा मार्गदर्शक दे, एक दूसरा रसूल दे, एक दूसरा पैगंबर दे, एक दूसरा मैसेंजर दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा इस दुनिया का शहजादा इस दुनिया में आएगा नहीं। उसके आने के लिए मेरा ऊपर जाना अति आवश्यक है, जरूरी है। जब वो इस दुनिया में आ जाए तो उसका नाम देखना क्या है, अंतिम ऋषि का, उस शहजादे का, आखिरी पैगंबर का नाम हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। बाइबल में आज भी लिखा है हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ईसाइयत कह रही है उसका नाम अहमद होगा। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये बच्चे हिफ्ज करके निकले हैं, स्टेज पे बैठे हुए, पूछिए कुरान में ये आयत मौजूद है या नहीं। कितने हाफिज होंगे, सबको मालूम है कुरान में ये आयत मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने पुकारा, ईसा ने कहा या बनी इस्राईल, ऐ इस्राईल के बेटो, ऐ इस्राईल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात, मुझसे पहले जो किताब उतारी गई तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब है। मूसा उस किताब को लेकर आए हैं, मैं उस किताब की पुष्टि करता हूं, उस किताब की तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब है। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, लेकिन तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, गुड न्यूज देता हूं, शुभ समाचार सुनाता हूं, एक ऐसे रसूल का जो मेरे बाद आएगा, मेरी जिंदगी में नहीं, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने कहा और उसी को बाइबल ने भी कह दिया। इसी चीज को गौतम बुद्ध ने कहा बुद्धिज्म में, आई विल नॉट फर्स्ट बुद्धा and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be a Mitra. हाय लोगो, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, गौतम बुद्ध कह रहे हैं, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं आखिरी बुद्धा भी नहीं हूं। ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। मित्रे माना जो ईश्वर की, अल्लाह की बहुत तारीफ करता हो, उसका नाम मित्रे होगा, यानी अल्लाह की बहुत तारीफ करने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और एक नाम अहमद, जो अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा करता हो। तो अहमद और मित्रे एक ही, जिसका नाम मित्रे होगा, यानी अल्लाह की तारीफ करने वाला, और अहमद का माना जिसने अल्लाह की बहुत तारीफ की हो, उसका नाम मित्रे होगा। ये गौतम बुद्ध ने कहा है। और हिंदू धर्म के अंदर तो मोहम्मद, महमद, अहमद इतना आया कि गिन नहीं पाओगे, इतना लिखा हुआ है कि गिनती अगर करना चाहो तो कर नहीं सकते, इतनी बार आया है। वेदा हामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तार यन्याय। वेदा हामिद पुरुष, अहमद नाम का एक पुरुष होगा। वेदा हामिद पुरुष, अहमद नाम का एक इंसान होगा। महान इमादित्य, इतना महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महान इमादित्य, महान पुरुष जो दूसरा ना हो, इतना बड़ा महान कि उसकी महानता के बराबर कोई दूसरा ना हो, उसकी बराबरी को कोई दूसरा न छू सके। वरुण तपसा, ईश्वर का बहुत नाम लेने वाला, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाला। वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत ही नाम लेने वाला होगा।
प्रस्ताव, जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, जब वो आ जाए तो उसी के धर्म में चले जाना। उसका नाम अहमद होगा और वो ईश्वर का, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाला होगा। जब वो आ जाए तो उसी के धर्म में, उसी की कुटिया में चले जाना, यानी उसी के धर्म में शामिल हो जाना। देखिए नाम भी अहमद, वेदाहमिद, अहमद नाम भी बता दिया। और वरुण तबस्सा, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाला होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह का किसी ने नाम ही नहीं लिया। आंख खुलती है सुबह सवेरे तो अल्लाह का नाम से शुरू होता है। यहां से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, यहां से आपका अल्लाह का नाम लेना शुरू होता है। जैसे ही सोकर उठते हैं, आंख खुलती है तो आप सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम। अब वुजू बनाने के लिए बैठ रहे हैं, पानी भरकर वुजू बनाने बैठे तो नाम ले रहे हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बना के फारिग होते तो अल्लाह का नाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल होते तो अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक नमाज में खड़े हैं अल्लाह की हम्द व सना। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह का नाम। रुकू में जाते अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में जब तक रहते सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली या सुब्बूहुल कुद्दूसुल रब्बुल मलाइकति वर्रूह या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह का नाम। रुकू से सर उठाते तो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। खड़े होते तो रब्बना वलकल हम्द, रब का नाम। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाते तो अल्लाह का नाम। सजदे में भी रहते तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली या सुब्बूहुल कुद्दूसुल रब्बुल मलाइकति वर्रूह या सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह का नाम। रुक सजदे से सर उठाते तो अल्लाह का नाम। दूसरे सजदे में जाने से पहले रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली दो मर्तबा पढ़ते तो अल्लाह का, रब का नाम। या अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, अल्लाह का नाम। अत्तहियात में बैठते तो अल्लाह का नाम, दरूद पढ़ते तो अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह का नाम। नमाज शुरू की थी तो अल्लाह के नाम से, और नमाज पढ़कर जब सलाम फेर रहे, नमाज खत्म कर रहे तो अल्लाह के नाम पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह शुरू की थी। अल्लाहु अकबर, देखिए अल्लाह का नाम। और नमाज खत्म कर रहे हैं तो कहाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। अब मस्जिद में बैठे तो खाली नहीं बैठे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम। जितनी देर जिक्र अस्कार में लगाए अल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह का नाम। जिक्र अस्कार से फारिग होकर मस्जिद से निकल रहे हैं तो मस्जिद से बाहर आ रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल होते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकलते बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह, अल्लाह का नाम। दुआ सलाम किसी से हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब आप किसी को दें तो
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह किसी से मुसाफा करे तो यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम ऊपर चढ़े तो अल्लाहु अकबर, नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह, आईना देखे तो अल्लाह का नाम, कपड़ा पहने तो अल्लाह का नाम, उठे तो अल्लाह का नाम, चले तो अल्लाह का नाम, सोने के लिए खाना खाए तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, खाना खाकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम, किसी को छींक आए और कह दे अल्हम्दुलिल्लाह तो उसके जवाब में कहे यरहमुकल्लाह, और खुद छींक आए तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम। गौर कीजिए, उठे थे अल्लाह का नाम लेकर, यहाँ तक कि पेशाब और पायखाने के लिए, लैट्रीन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, वहां से निकले तो गुफ़रानका, आय अल्लाह तेरी मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम, हर वक्त अल्लाह का नाम, उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, जब लेटते दाहिनी करवट से तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, यहाँ तक के बीवी से अपनी जरूरत भी पूरी करे तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान जन्निबी शैतानी मा रज़क़तना, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैतान व जन्निबी शैतानी मा रज़क़तना, आय अल्लाह मुझे शैतान से महफूज फरमा, अल्लाह जन्निबना शैतान, आय अल्लाह मुझे शैतान से दूर रख, व जन्निबी शैतान, और शैतान को मुझसे दूर रख, उस औलाद से जो तू आज की मुलाकात में मुझे अता करने वाला है, हमको भी शैतान से बचा, और उस बच्चे को भी जो तू आज हमारी मुलाकात से तू हमें अता करने वाला है, उस बच्चे की भी हिफाजत फरमा। बीवी से मुलाकात हो, हम बिस्तरी हो तो उधर भी अल्लाह का नाम, गौर करो कितना अल्लाह का नाम, वरुण तपस्सा उसका नाम अहमद होगा, और अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा। सबसे ज्यादा नाम अगर किसी ने लिया अल्लाह का तो वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आगे कहा आया स्वर्ग में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आया मोहम्मद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं जो तुम्हें स्वर्ग में ले जाए, जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। अभी दो ही चीजें हुई हैं, हालांकि इन दोनों को मिलाओ तो एक चीज होगी कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अभी मैंने अहमद बताया है, मोहम्मद का नाम भी वेदों में आया है, मोहम्मदान धिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका, मोहम्मद इस धरती पर जब आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदान धिकारम नाशम, मैंने बहुत दिनों से मंत्र पढ़े नहीं, बल्कि कई सालों से मंत्र पढ़े नहीं, लेकिन आज पता नहीं सोच के भी नहीं आया था, लेकिन निकल गया, पढ़ दिए, कोई बात भी नहीं। ये इस सीजन की ये लास्ट तकरीर भी है, कल हम यूपी में होंगे, फिर इस एरिया में शायद 30 तारीख को कहीं प्रोग्राम है मेरा, वैसे तो 25 से फिर शुरू हो रहे हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस एरिया में आसपास कहीं 30 तारीख को फिर है, हमें याद नहीं है कहाँ है। वो लोग भी तौसीफ साहबी के पास जाकर प्रोग्राम लिए थे। तो मेरे भाइयों, आज की तकरीर को कोई दलील ना बनाए कि मौलाना साहब उधर मंत्र पढ़े तो हमारे इधर भी मंत्र पढ़े। मैं पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि अब जरूरत मुसलमानों को रास्ते पे लाने की है, न कि वेदों के मंत्र की। अब जरूरत मुसलमानों के अंदर दीन के फूकने की है, न कि वेदों के मंत्र की। लेकिन चूंकि तो आज थोड़ा सा मूड था, आप लोगों की भीड़ देखकर बन गया, तो मैंने पढ़ दिए। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, हालांकि मैं बता दूं कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे ऊपर हाई कोर्ट की बाउंडेशन लगी हुई है,
इलाहाबाद हाई कोर्ट की कि जब तक आप केस से बरी नहीं हो जाते हैं तब तक आप कहीं ना मंत्र पढ़ेंगे ना किसी दूसरे धर्म पे कोई टिप्पणी करेंगे। तो ये थी फाउंडेशन की बात जो मैं कहीं पढ़ नहीं रहा था, लेकिन आज पढ़ दिया। अच्छा हुआ चैनल वालों को मैंने पहले ही हटा दिया, वरना ये दे ही देते कहीं ना कहीं और हो जाता कुछ मामला। चलिए वो मामला मेरा है, मैं निपटूंगा। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए क्या कहा, वअन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु वअन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मोहम्मदान दिकारम, मोहम्मद आएंगे, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। अंधिकारम नाशम, मोहम्मद तो आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। यानी नबी के आने से पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा भी ऐसा, अरे हम और आप क्या शराब पिएंगे जो अरब के अंदर पी जाती थी, हम और आप क्या जुआ खेलेंगे जो अरब के अंदर खेला जाता था। जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान हार जाते थे तो बीवी लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार गए तब भी कहता था नहीं अभी हमारे पास जवान बेटी है, उसको भी लगा देता था जुए। शराब तो इतनी पी जाती थी, जैसे हम लोग खाना खाते वक्त गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं ना, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, खाना खाते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं। अरब के लोग खाना खाते वक्त शराब की बोतल अपने पास रखते थे, वो स्प्राइट या पानी की जगह पर शराब पीते थे। उनके घर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो अपने बच्चे को पैदा होने के बाद मां के दूध का कतरा नहीं बल्कि शराब का कतरा उसके हलक में डालते थे और ये फख्र करते थे कि हमारे बेटे